Hello everyone, myself Shubham Gupta and I welcome you all to Unacademy's India's largest e-learning platform. So I hope with the help of this platform you are enhancing your preparation and day by day getting closer to your goal. So this is your part second of previous year question of your steel and structural engineering. In part first we have covered 15 question and we'll continue from this part. So this is the question number 16, the property of material by which it can be beaten or rolled into thin plates. So the answer is what? Answer is malleability. What is malleability? So it is the property of material by the virtue of which it can be drawn into thin sheets by mechanically acting on it. So this is the shape, original bar, and after mechanical treatment it can be drawn into thin sheets. So this is what your malleability. नेक्स्ट डक्टिलिटी की अगर बात करते हैं तो डक्टिलिटी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर द रप्चर और फेलियर. फेल होने से पहले वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर ले आपका मटेरियल. सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर डक्टिलिटी. तो इन्हीं दोनों में आपका कंफ्यूजन होता है. प्लास्टिसिटी इज नॉट पॉसिबल, इलास्टिसिटी इज नॉट पॉसिबल, डक्टिलिटी इज डिफरेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. इफ द डेप्थ ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम, डेप्थ simply supported beam carrying an isolated load means क्या हो गया आपका? पॉइंट लोड की बात कर रहा है वो, डिफरेंट वे में बोला हुआ, बस आपको समझना है. एट इट सेंटर इज डबल्ड, the deflection of the beam at the center will be changed by a factor of, okay, there is a simply supported beam, this is the beam, this is your cross section, ये आपका cross section है, this is B, this is D, and this depth is changed, now doubled, this is now 2D. So deflection of this simply supported beam is what? 4 by 192, that is WL cube upon EI. So the load is not changing, the length is not changing, E is not changing. What is changing? The moment of inertia is changing. So deflection is inversely proportional to your moment of inertia. What is moment of inertia in this case? In this case the moment of inertia is BD cube by 12. And then changed की अगर मैं बात करता हूँ आपका जब डबल हो गया, so this is B into 2D cube by 12. क्लियर? सो अल्टीमेटली योर डिफ्लेक्शन आपका कितना हो जाएगा चेंज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ? सो इट विल बी डायरेक्टली, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू योर this b yes, by a factor of, so factor is your 1 by 8. yes, this is 1 by 8 bd cube by 12. so this is the factor. so आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर इज डी. तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, आपको मेमोराइज करना है. मैं उसको एक बार यहाँ पे नोट डाउन करा देता हूँ. आई थिंक यस, इस स्लाइड पे. तो फर्स्ट कंडीशन हम अज्यूम करते हैं दैट देयर इज अ कैंटिलीवर बीम, अ मूवमेंट इज एक्टिंग, मूवमेंट इज एम, दिस इज ए, दिस इज बी, देन देयर इज अनदर cantilever beam where the point load P is acting. So this is A, this is B, and another point load, another cantilever beam where UDL is acting, and this is what? W kilonewton per meter. This is the load. This is small w. Yes. So let's just talk about this particular. Deflection at A is 0. Slope at A is 0. Now let's just talk about the slope at B. So this is your ML upon EI. This is the slope. ये standard value है, आपको ध्यान में रखना है. Now let's just talk about the deflection at B. So this is ML square upon 2EI. E is your modulus of elasticity, I is moment of inertia based on that particular cross section, M is the moment acting at the free end, and L is your length of beam, that is length of beam. Now अब आते हैं आपका इस second beam पे सेम deflection at A 0 हो जाएगा, आपका slope at A will be 0. Now let's just talk about your slope at B. B पे आपका slope क्या हो जाएगा? अगर मैं इसकी deflected shape आपको बना के दिखाता हूँ, so it will be something like this. So deflection at A 0,
स्लोप एट ए इज इक्वल टू 0। डिफ्लेक्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है? आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है बी पॉइंट पे। सो दिस इज योर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, एंड दिस इज योर स्लोप, this is your slope, this is your slope at B point. So slope at B point, so this is PL square upon 2EI, then deflection at B point is equals to PL cube upon 3EI. Next नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका, दैट इज योर यूडीएल। यूडीएल के केस में अगेन यहाँ पे भी आपका जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन एट ए 0, स्लोप एट ए 0, देन स्लोप एट सी, सॉरी स्लोप एट बी, स्लोप एट बी, बी की बात करते हैं। सो दिस इज योर डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3EI। सो दिस जस्ट अ मिनट, not 3, this is 6. Then you have deflection at B. Deflection की बात करते हैं. What is the deflection? Deflection is your WL4 upon 8EI. Small w. This is small w, that is intensity. तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको पता होनी चाहिए. These are the standard value that you should memorize. और बात कर लेते हैं और डिटेल में, इसको मैं इरेज कर देता हूँ. Next condition is your simply supported beam. This is your simply supported beam, a point loaded acting. Then the same beam is converted into your fixed end beam, point load is acting. Then another, this is again simply supported, a UDL is acting. Yes, a UDL is acting, and again that particular beam is converted into your fixed end beam. So this is the condition. ये आपका condition हो गया A, B, C. Again सबके लिए वही होगा आपका same A, B, C. Okay. So यहाँ पे आपका जो slope at A is equals to slope at B बराबर हो जाएगा. स्लोप एट सी की बात करता हूं तो 0 हो जाएगा. डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आपको कहां पे मिलेगा? दैट इज एट डिफ्लेक्शन एट सी, दैट विल बी द मैक्सिमम. तो इस केस में आपका डिफ्लेक्शन कितना हुआ? इस केस में आपका डिफ्लेक्शन हो गया दैट इज योर 4/192. दिस लोड इज योर P, तो दिस इज PL क्यूब अपॉन EI. ये आपका केस हो जाएगा. क्लियर? सिमिलरली मैं बात करता हूं आपका इसी बीम को, सेम बीम को आपने सिंपली सपोर्टेड से आपने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया? आपने उसको कन्वर्ट कर दिया फिक्स्ड एंड में. सो उसका डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एट सी इन दिस पर्टिकुलर केस, इस केस में आपका जो डिफ्लेक्शन एट सी दैट इज डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगा? दैट इज योर PL क्यूब अपॉन 192EI. क्लियर? यहां पे आप देख रहे हो डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है. जब आपका फिक्स्ड एंड था तो ये आपका डिफ्लेक्शन इतना था. जब आपने फिक्स्ड एंड को रिमूव करके उसको सिंपली सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया? डिफ्लेक्शन आपका हो गया 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया डिफ्लेक्शन. जस्ट इमेजिन, फिक्स्ड एंड था तो डिफ्लेक्शन इतना था, जब सिंपली सपोर्ट आपने कर दिया तो वहां पे आपका डिफ्लेक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया. ये भी डायरेक्टली पूछ सकता है आपका, सपोर्ट चेंज कर दिया. क्लियर? क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछ सकता है वो आपको देखने वाली बात है. तो आपका जो रिमेनिंग हुआ, यस दैट इज योर स्लोप की बात करते हैं. सो दिस इज योर PL स्क्वायर अपॉन 16EI. ये आपका स्लोप हो गया. अब मैं यहां पे आता हूं दैट स्लोप एट A इज इक्वल टू स्लोप एट B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज क्या है? फिक्स्ड एंड है. Clear? So in this particular case, what you will get only deflection. Slope at C, obviously this will be 0. Now next move करते हैं आपका UDL के केस में. यहाँ पे आपका UDL है, तो slope at A is equals to slope at B. Slope at C will be 0. Deflection maximum आपको कहाँ पे मिलेगा? At C. और यहाँ पे C की वैल्यू कितनी होगी? That is your 5/384 WL4 upon EI. This is the answer for this. ये इतना आपका डिफ्लेक्शन होगा.
अब आपका इसी केस में मैं आता हूं, जब आपका फिक्स्ड एंड है तो वहां पे आपका सी पे डिफ्लेक्शन कितना होता है, दैट इज योर WL4/384 EI। तो जस्ट इमेजिन यहां पे कितना हुआ, दैट इज योर 5 times increase. So in this particular case, when the UDL is acting and the support is changed from fixed end to simply supported, तो कितना इंक्रीज हुआ आपका 5 times हुआ। इसी तरीके से उल्टा बोल सकता है, आपका पहले सिंपली सपोर्टेड था, देन आपका सपोर्ट चेंज किस में कर दिया, फिक्स्ड एंड में, तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज कितने फैक्टर से हुआ, तो फैक्टर क्या हो जाएगा 1/5। सिमिलरली यहां पे अगर मैं आता हूं पॉइंट लोड के केस में, तो फैक्टर कितना है, दैट इज योर 4। सो यहां पे अगर मैं स्लोप की बात करता हूं, सो स्लोप इज योर WL³ upon 24 EI। दिस इज द स्लोप। W इज योर लोड इंटेंसिटी इन किलो न्यूटन पर मीटर। यहां पे अगर मैं बात करूं, स्लोप एट A इज इक्वल टू स्लोप एट B इज इक्वल टू 0, स्लोप एट C विल बी 0, डिफ्लेक्शन आपको यहां पे मिलेगा नहीं, सपोर्ट है यहां पे। क्लियर? सो ये आपको फॉर्मूले मेमोराइज कर रहे हैं, ये आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यस, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, which is the correct statement as per law of polygon of forces। ठीक है, ये आपका बहुत सारे फोर्सेस जब एक आपका प्लेन में या फिर एक पॉइंट पे जब एक्ट कर रहा होता है, तो उस केस पे हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं योर लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। तो वो क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। तो इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ अ पॉलीगन, बिल्कुल सही बात है, जो भी आपके फोर्स एक्ट कर रहे हैं, अभी देखो डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसको मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एक आपका ये फोर्स है और एक आपका दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है। क्लियर? तो मैं इस फोर्स को, ठीक है, मैं इस फोर्स को मैं यहां पे प्लेस कर सकता हूं, मैं इस पर्टिकुलर फोर्स को यहां पे प्लेस कर सकता हूं, मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। यस, बिल्कुल सही बात है, मैं उस तरीके से मैं उसको चेंज कर सकता हूं। देखो ये कोई पॉइंट है, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो 25 किलो न्यूटन, और आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज 25 किलो न्यूटन। सो इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, बट उससे एडवांटेज क्या मिलता है वो देख लेते हैं। इन ऑर्डर ठीक है, पॉलीगन में कर दिया, सो दैट देयर रिजल्टेंट फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। यस, आप उससे रिजल्टेंट जो फोर्स है उसको इजीली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसका अगर आप डेरिवेशन पे जाओगे, ठीक है, इसका अगर आप जब डेरिवेशन देखोगे तो वहाँ पे विद वैल्यूज इसको सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको इजीली पता चल जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग इनटू डेरिवेशन। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर को चेक कर लेते हैं। इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेज acting at a point can be represented by the side of polygon taken in order, then the force is in equilibrium. No. If any number of forces acting at point can be represented in direction and magnitude by the side of polygon, then the forces are in equilibrium. Okay, just a minute. I think this if any number of forces acting at a point can be represented in direction and magnitude by the side of polygon. ओके, बी एंड डी आपका ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन आपके काफ़ी सिमिलर रखे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं, सी पे। इफ अ पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज क्लोज्ड, देन द फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम। देन द इज क्लोज, नो। नेक्स्ट बात करते हैं आपके स्टेटमेंट बी और डी में, देखना है उसमें डिफरेंस कहां पे आ रहा है आपका। डी की बात करते हैं, इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाय द साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है, इन ऑर्डर देन द फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम। और यहां पे आपका इन ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है। यस, तो करेक्ट, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी। डी इज द राइट आंसर। देखा आपने, थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा।
Okay, next question, question number 19. The degree of kinematic indeterminacy. So DK कैलकुलेट करने को आपको बोल रहा है फॉर अ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम. पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम की बात कर रहा है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर 2J. ठीक है, 2J क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ जॉइंट्स हो गया, एंड R इज योर रिएक्शन. ठीक है, सो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैं पूरे के पूरे आपके जो भी फॉर्मूलेज होते हैं वो मैं लिस्ट डाउन कर देता हूं, सो दैट कोई अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ. सो दिस इज योर this is for your 2D truss. This is for 2D truss or pin jointed plane frame. Clear? So this is the right answer, 2J minus R. Next अगर मैं बात करता हूं आपका for 3D truss या फिर pin jointed आपका space, तो क्या हो जाएगा, that is your 3J minus R. उस केस में आपका आंसर क्या हो जाता, C हो जाता आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. ओके, सो आंसर इज ऑलरेडी मेंशन. कोई मैटर नहीं करता, हम उसको देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. इफ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सॉरी, इन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ऑल द मेंबर्स मीटिंग एट एनी जॉइंट इज ऑलवेज. ठीक है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, मीटिंग एट अ पॉइंट, वेरियस मेंबर्स हैं आपके. द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, बिल्कुल सही बात है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो आपका कितना होता है, दैट इज 1. मतलब क्या हुआ, आपको जो भी आपका यहाँ पे मूवमेंट था उसको आपने क्या किया हुआ है, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. 4 जॉइंट्स हैं तो आपने 4 डिफरेंट जॉइंट्स पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. तो जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो टोटल सम क्या है उसका, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम क्या हो जाएगा, 1. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कहते हो 20%, एक का आपका 30% है, एक का आपका 40 है, सो दिस इज 50 प्लस एंड 10, इस तरीके से. तो अगर आप इसका टोटल सम करोगे तो कितना आया, 100%. सो दैट इज द केस. सो आंसर इज व्हाट, सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, इस तरीके से आपका सिस्टम होता है. अगर पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना हो तो, सो दिस इज द जॉइंट, इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है. यहाँ पे जो आपका जो एंड है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर फिक्स्ड एंड सपोर्ट. Next question, question number 25. To generate the jth column of flexibility matrix, flexibility matrix का आपको jth column को कंस्ट्रक्ट करना है, तो उस केस में कौन सी कंडीशन होती है उसके देख लेते हैं. आपको पता है 2 टाइप की आपकी मैट्रिक्सेस होती हैं, एक होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और एक होता है आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स. दोनों ही आपका फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस जो होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी आपका रेजिस्ट मतलब जितना ज़्यादा स्टिफ होगा मटेरियल उतना ही कम फ्लेक्सिबल होगा, जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल उतना ही कम आपका स्टिफ होगा वो मटेरियल. तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस ऑप्शन को पढ़ते हैं. अ यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट J and displacement are calculated at all coordinate. ओके, ठीक है. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 21st क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. आ यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज अप्लाइड. नो, डिस्प्लेसमेंट तो हम प्रोवाइड ही नहीं करते हैं. ठीक है, दैट इज रॉन्ग. नेक्स्ट बात करते हैं सी की. आ यूनिट फोर्स इज अप्लाइड. बिल्कुल सही बात है, यूनिट फोर्स आपका अप्लाई होता है एट कोऑर्डिनेट J एंड द फोर्सेज आर कैलकुलेटेड. यूनिट फोर्स आप लगा रहे हो और फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो. नो, डी यूनिट डिस्प्लेसमेंट तो आप अप्लाई ही नहीं करते. सो राइट आंसर इज व्हाट, ए इज द राइट आंसर. जिस भी पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे आप क्या करते हो, यूनिट फोर्स को आप अप्लाई करते हो एंड देन यू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. वहां पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं. दिस इज व्हाट वी डू इन फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड जो लेक्चर है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो. वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम उसको डेवलप करते हैं. मैट्रिक्स वाले पार्ट में दैट इज कवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. द डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ यूनिट लोड इज कॉल्ड. ओके,
So this is talking about the deformation produced by a spring अंडर अ यूनिट लोड. कोई आपने यूनिट लोड लगाया और उसमें जो डिफॉर्मेशन आपको मिला उसकी बात कर रहा है. सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी. आंसर इज योर बी, बी इज द राइट आंसर. स्टिफनेस की बात करेंगे, सो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो दिस इज स्टिफनेस inversely proportional to your flexibility. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. स्टिफनेस क्या होता है? रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन. स्टिफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन. सिंपल. नेक्स्ट आपका 23rd, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर इज. ओके, कंप्रेशन मेंबर के सिलेंडरनेस रेशियो की आपकी बात कर रहा है. तो व्हाट इज द सिलेंडरनेस रेशियो? That is your option is given, moment of inertia divided by radius of gyration. No, generally आपने आप यहां पे इमेज में देख लेते हैं. Cylinders ratio, it is defined as the ratio of effective length of compression member and its least radius of gyration. Radius of gyration की बात कर रहा है. Clear? तो आपका सिलेंडर्स रेशियो क्या हो गया? L बाई आर. अब R क्या है? आपका रेडियस नहीं है. R इज नॉट रेडियस, R इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके क्या कर देते हैं, वहां पे रेडियस या डायमीटर दिया होता है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का, तो उसको वैल्यू यूज करते हैं. नो, दिस R इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन एंड दिस इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ I बाई A. A इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड I इज व्हाट, I इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपका एक सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, तो वहां पे आपका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई तो इक्वल हो जाता है, तो आप वैल्यू यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आपका दिया हुआ है रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया हुआ है, तो आप कौन सा लोगे? आप लोगे आपका आई मिनिमम जो भी आ रहा है, ठीक है, आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है. बिकॉज यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है? आपका लीस्ट रेडियस, लीस्ट. क्लियर? सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन कैलकुलेट द सिलेंडरनेस रेशियो. ये आर आपको ध्यान में रखना है. दिस इज नॉट रेडियस, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन. तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन. यस, सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 24th की, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं. द थिकनेस टी ऑफ अ सिंगल फ्लैट लेसिंग शुड नॉट बी लेस देन. ओके, सो थिकनेस, लेसिंग की थिकनेस की बात कर रहा है. सो कितना होता है और किसकी बात कर रहा है? आपका सिंगल की, ठीक है, सिंगल की. सो दैट इज व्हाट शुड नॉट बी लेसर देन L इफेक्टिव बाई 40 फॉर सिंगल, and this should not be lesser than L effective by 60 for double lacing. तो अगर आपका क्वेश्चन में दिया, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया. अगर क्वेश्चन में आपका दिया होता डबल, तो आंसर क्या हो जाता? आपका डी राइट आंसर हो जाता. ये आपका प्रॉपर्टी है. दीज आर द प्रॉपर्टी, IAS कोड के प्रोविजन है आपके. दिस इज योर लेसिंग, ये आपका लेसिंग है, उसकी लेंथ की बात कर रहा है आपका L इफेक्टिव. क्लियर? Yes. Next question number 25. The stiffness are used in a plate girder. Stiffness are used in a plate girder. ठीक है, stiffness का यूज क्या होता है आपका, तो उसको देख लेते हैं. What are stiffness? ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. These are the stiffness. ये आपका प्लेट था, ठीक है, it is something like this. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है आपको? इस प्लेट गर्डर को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्टिफनर, स्टिफनेस का मतलब क्या था? स्टिफनेस का मतलब क्या था? टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन. सो ऑब्वियसली टू रेजिस्ट दिस प्लेट गर्डर, टू रेजिस्ट दिस आई बीम अगेंस्ट एनी डिफॉर्मेशन, आप क्या लगाओगे? आप स्टिफनर्स को अप्लाई करते हो. वेरियस कोडल प्रोविजंस होते हैं उसके कि कितना आपको किस लोकेशन पे आपको स्टिफनर प्रोवाइड करना है. ट्रांसवर्स स्टिफनर प्रोवाइड करना है या आपको लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर प्रोवाइड करना है, उसकी बात होती है. सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, स्टिफनर आर प्रोवाइडेड इन प्लेट गर्डर टू रिड्यूस द कंप्रेसिव स्ट्रेस, नेक्स्ट टू रिड्यूस द
shear stress, क्या स्ट्रेस कम कर लेगा वो? इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द स्ट्रेस? अब आया आप एक चीज मुझे ये बताओ, आपने क्या किया, आपने ये स्ट्रेस था, ठीक है, ये आपका लोड अप्लाई हो रहा था एंड दिस इज द एरिया, तो क्या स्टिफनर आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगा? नो, स्ट्रेस को वो ले रहा है, स्ट्रेस को रिड्यूस नहीं कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज नॉट रिड्यूसिंग। अगर ये होता आपका रेजिस्ट तो आपका आंसर सही हो जाता। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। टू टेक द बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेस के लिए आप क्या लगाते हो, आप बियरिंग प्लेट्स वहां पे इंस्टॉल करते हो। सो दिस इज रॉन्ग आंसर। डी इज व्हाट, टू अवॉइड बकलिंग ऑफ वेब प्लेट। यस, बिल्कुल सही बात है, टू अवॉइड बकलिंग ऑफ वेब प्लेट। वेब प्लेट की बकलिंग को अवॉइड करने के लिए आपने क्या किया हुआ है, वहां पे आपने स्टिफनर्स को अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सर्कुलर इलेक्ट्रिक पोल। एक आपका सर्कुलर पोल है, इलेक्ट्रिक पोल की बात कर रहा है, क्लियर। लेंथ L है, डायमीटर D है, इरेक्टेड ऑन ग्राउंड। ऑब्वियसली यही आपका सिस्टम होता है। आप जब इलेक्ट्रिक पोल है दिया हुआ है आपका, तो वायर जा रहा होगा एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में आपका वायर होगा। देन उस केस में आपका पूछ क्या रहा है, उस केस में आपका पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ। इस केस में आपका इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, तो कोडल प्रोविजंस को चेक कर लेते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ? so this is the case when the length is when the section is effectively held in position at one end but not restrained against rotation and at the ठीक है, the case is your this is the case, ये आपका केस हो गया। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रीस्टेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, बिल्कुल सही बात है। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन, पोजिशन में है, ये ग्राउंड में है। रोटेशन पॉसिबल है? नो, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल एट एंड, बट ठीक है, बट नॉट हेल्ड इन पोजिशन, बट नॉट हेल्ड इन पोजिशन नॉर रीस्टेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट द अदर एंड। अदर एंड पे, अदर एंड की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अदर एंड पे जो इलेक्ट्रिक पोल की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे जो वायर आपका जा रहा है, अगर मैं टॉप व्यू की बात करता हूं, इट इज समथिंग लाइक दिस, तो वायर आपका एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करता हूं, ठीक है, दिस इज योर वाई डायरेक्शन, अगर मैं बात करता हूं आपका एक्स डायरेक्शन की, सो एक्स डायरेक्शन में क्या कोई रीस्टेंड है? नो, कोई भी रीस्टेंड नहीं। एक्स डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में वो रोटेट कर सकता है, तो उस केस में आपका इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाता है? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा डी। आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपको जो वायर है वो केवल एक ही सिंगल डायरेक्शन में है, और जो पोल जो मूव कर सकता है वो आपका दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, आपका एक्स एक्सिस में भी और आपका वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता है। क्लियर? तो आपको दोनों ही चेक करना पड़ेगा, यू नीड टू चेक इन बोथ द डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द शेप फैक्टर फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज। ओके, शेप फैक्टर की बात करता है। शेप फैक्टर क्या शो करता है? आपका रिजर्व स्ट्रेंथ शो करता है। रिजर्व स्ट्रेंथ किसके बाद? आपका यील्ड मूवमेंट के बाद, यील्ड स्ट्रेंथ के बाद। यील्ड स्ट्रेंथ के बाद जो आपकी स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है अप टू प्लास्टिक मूवमेंट या प्लास्टिक यील्डिंग, तो उस केस में क्या हो जाएगा? दैट इज योर, दैट शोज योर शेप फैक्टर। इट इज द रेशियो ऑफ इलास्टिक टू प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी। सॉरी, इट इज, ये गलत लिखा हुआ है। दिस इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक टू इलास्टिक, प्लास्टिक टू इलास्टिक। सो शेप फैक्टर इज इक्वल टू MP/My, ये चीज आपकी होती है। क्लियर? सो डिफरेंट शेप के लिए, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल शेप के लिए आपका शेप फैक्टर कैलकुलेट होकर आता है, सबका डेरिवेशन किया हुआ है। सो अगर आपका आई सेक्शन है तो उसका रेंज क्या होता है? दैट इज 1.12 टू 1.15। सर्कुलर आपका हॉलो सेक्शन है सो दैट इज 1.27। आपका अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है सो दैट इज 1.5 हो जाता है। इसी के लिए पूछा हुआ है। आपका जब सर्कुलर, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन होता है देन उस केस में आपका क्या होता है? 1.69 या फिर 1.7 उसको कंसीडर करते हैं। जब आपका टी सेक्शन होता है दैट इज 1.8, एंड जब आपका डायमंड सेक्शन होता है सो दिस इज 2। सो आपको याद कौन सा रखना है? आपको एक ये याद रखना है डायमंड सेक्शन का, आपको ये वाला याद रखना है, और आपको सर्कुलर वाला याद रखना है, एंड आई सेक्शन का भी। यस,
तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज योर बी। बी इज द राइट आंसर। अभी आपका रेक्टेंगुलर का पूछा है तो किसी और सेक्शन का भी वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अगेन इट इज रिलेटेड टू रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अभी आपने पढ़ा था रेडियस ऑफ गायरेशन इज व्हाट? आपका दिस इज योर आई, ठीक है, आई मिनिमम आपका होगा डिवाइडेड बाई एरिया, अंडर रूट। So this is under root I by A. Answer is what? B is the right answer. Next question, question number 29. The Mueller-Bastro principle in structural analysis is used for. Okay, so this principle is used to draw the ILD. ILD जब आपको draw करना होता है तो आपका ये use होता है। यहाँ पे सारे आपके laws provided हैं related to what? Drawing the influence line diagram. कैसे आपको influence line diagram को ड्रॉ करना है, उससे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल है वो किसने दिया हुआ है? दैट इज म्यूलर ब्रेस्लो। सो आंसर इज व्हाट? ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग इक्वेशन इज। अब आप देखो कितना इजी आया है, आप जस्ट उसको रीड करके ही आप सॉल्व कर सकते हो। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है? सो दिस इज सिग्मा वाई आई इज इक्वल्स टू एम बाई आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर। कितना इजी, अब देखो मैच कर लो इसको। सो दिस इज एफ बाई वाई, सिग्मा की जगह एफ दिया हुआ, ई बाई आर इज इक्वल टू एम बाई सी हो गया आपका राइट आंसर। बहुत ही बेसिक नॉलेज आपका चेक करता है, बहुत ही बेसिक नॉलेज, कोई ऐसा डीप नॉलेज नहीं चेक कर रहा, बेसिक आपके कॉन्सेप्ट चेक करेगा, बेसिक चीज़ें आपको पता है, टाइमली आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, देन इट इज़ वेरी इजी टू क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। नो डाउट कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है बिकॉज यहाँ पे जो पेपर होता है वो कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है। तो दिस इज द केस। Next question, for a prismatic beam of length L, moment of inertia I, the stiffness factor is। अब बात कर रहा है आपका stiffness factor की। प्रिज्मेटिक बीम है L, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है आपको कि एंड कंडीशन क्या है, तो उसको देख लेते हैं। सो जो आपका रिलेटिव स्टिफनेस होता है, ठीक है, रिलेटिव स्टिफनेस जो होता है दैट इज योर डिपेंड्स ऑन द एंड कंडीशन। अगर आपकी एंड कंडीशन, ठीक है, अगर आपकी जो एंड कंडीशन है वो फिक्स्ड एंड है तो उस केस में आपका हो जाता है 4EI/L। अगर आपका एंड जो कंडीशन है वो आपका क्या है? दैट इज हिंज सपोर्ट, वो हिंज सपोर्ट है, सो दैट इज योर 3EI/L। इस तरीके से आपका सिस्टम होता है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? यहाँ पे आपको कंडीशन इज नॉट गिवन, यहाँ पे आपको कंडीशन नहीं पूछी हुई है। यू नीड टू कैलकुलेट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सो यस, तो उस केस में आपका क्या हो जाता है? स्टिफनेस फैक्टर क्या हो जाता है? स्टिफनेस फैक्टर इज व्हाट? दिस इज योर, जस्ट अ मिनट। Okay, for a prismatic beam of length L and moment of inertia I, the stiffness factor is. So in this particular question, the condition is not given. What is the end condition? So this is for your this is for when the end is, when the farther end is hinged. This is when farther end is फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड, एंड आपका जीरो भी होता है व्हेन फार्दर एंड इज फ्री, व्हेन फार्दर एंड इज फ्री, जब आपका जो फार्दर एंड है वो एकदम फ्री हो। तो दीज आर द केसेस, ये आपके कंडीशंस हो गए। इस कंडीशन के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है, so it is very difficult to answer that particular question, so we'll skip this particular question as of now. Okay, so this is the end to your ISRO previous year series, that is your ISRO series 10 of previous year question। आपने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं that is of highway, survey, and you have strength of materials, then irrigation and hydrology, that is covered. That is irrigation, hydrology, highway survey, strength of materials, yes, structure and steel, ये आपका कवर हो गया है। कल जो आपका डिस्कस होगा दैट इज योर फ्लूइड मैकेनिक्स, same time at 9 AM. So we'll see you
we'll meet you at that time, and till then do join this Telegram channel. जो भी latest update है related to any lecture will be available on this Telegram channel. So do join this channel. Okay, we'll meet tomorrow at same time. Thank you for joining this session.